السلام علیکم، علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں گلاب بلوچ۔ اے اللہ، خانوادہ رسالت کی اس عظیم قربانی کے صدقے میں جو کربلا کے میدان میں تیرے دین کی بقا کے لیے دی گئی، ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، آمین۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو خبر دیتے چلیں، اندرون سندھ بھی موسلادھار بارشوں نے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سڑکوں پر پانی کھڑا ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا، نشیبی علاقے کے لوگ گھروں میں محصور رہے۔ سندھ میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا رکھی ہے، نظام زندگی درم برم ہو کر رہ گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے، جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تیز بارش نے حیدرآباد پانی کر دیا، لطیف آباد، قاسم آباد تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ میرپور خاص میں مسلسل کئی گھنٹے کی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہے، سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگی۔ سکھر میں بارش نے میونسپل انتظامیہ کی کارکردگی کے پول کھول دیے، شہر کی مین شاہراہوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ نوشہر و فروز میں سڑکیں اور گلیاں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ ٹنڈو محمد خان میں طوفانی بارش سے غریبوں کے آشیانے بکھر گئے، ایک مکان کی چھت گر گئی، سول اسپتال میں 3 فٹ پانی جمع ہو گیا، ایمرجنسی یونٹ پہلی منزل پر منتقل کرنا پڑا۔ ٹھٹھا کی شاہی بازار، ناکا گراؤنڈ اور کچی آبادی میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ سجاول میں تیز بارش سے گلیاں اور سڑکیں پانی سے بھر گئیں۔ جیکب آباد شہر اور گردرواہ میں وقفے سے جاری بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ رحیم یار خان کے علاقے کوٹ سبزل میں بھی انتظامیہ کی غفلت کے باعث ابر رحمت زحمت بن گئی، سڑکیں اور گلیاں بارش کے پانی سے بھر گئیں۔ سانگڑ میں سڑکیں اور گلیاں بارش کے بعد تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ دادو میں بارش نے انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ کالج روڈ، نیو چوک، اسٹیشن روڈ سمیت شہر کی اہم شاہراہیں زیر آب آ گئیں۔ تھل سمیت دیگر شہروں میں بادل برستے ہی بجلی بھی غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی۔ لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام سمیت مختلف علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ مزید دیکھتے ہیں جانزیب علی کی رپورٹ۔ حیدرآباد شہر میں بھی موسلادھار بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ شہر، سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ گزشتہ روز سے ہونے والی بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں کئی مکانات اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ گھروں میں پانی بھرنے سے قیمتی سامان، فرنیچر اور بجلی کے آلات خراب ہو چکے ہیں، جبکہ لطیف آباد کو حیدرآباد سٹی سے ملانے والے انڈر پاس میں بھی کئی فٹ تک پانی جمع ہے۔ یہاں کے راستے کا جو پل ہے، یہاں سے سمجھ لو 3-4 جگہوں کے گاڑیاں نکلتی ہیں، اور یہاں کا نظام تو حیدرآباد کا بڑا گندا ہوا ہے۔ یہاں پر جو پانی بھرا ہوا ہے کہ بندہ اگر نکلے یہاں سے تو بندہ ہی ڈوب جائے، سمجھ لو آدھا پورا بندہ اس کے اندر جا رہا ہو۔ گاڑیاں کس طریقے سے نکالے گا یہاں پر؟ تو سندھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو دیکھیں، یہاں پہ موٹریں آئی ہوئی ہیں لیکن وہ چل نہیں رہی، تو درخواست ہے ان سے موٹریں چلائیں تاکہ جو ہے وہ پانی نکلے ہمارا، تاکہ گھروں کے اندر لائٹ کا تو اتنا برا حال ہے کہ رات کو 13 گھنٹے بعد لائٹ آ رہی ہے۔ ضلعی انتظامیہ حیدرآباد کا کہنا ہے کہ بارش کے پانی جمع ہونے کی اصل وجہ ہیسکو انتظامیہ ہے، جو کہ پمپنگ اسٹیشنوں پر بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے سبب پانی کو نشیبی علاقوں سے نکاسی آب میں مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ دادو میں بارشوں نے ایک بار پھر تباہی مچا دی، نشیبی علاقے زیر آب، پورا شہر پانی ہو گیا۔ سیلابی ریلا ایک مرتبہ پھر کاچو میں داخل ہو گیا، ایک بچے سمیت 2 خواتین سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ پھر بارشیں، ایک بار پھر تباہی۔ دادو میں 24 گھنٹوں سے جاری بارش نے دادو کو پانی کر دیا۔ شہر کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ مختلف علاقوں میں گھروں کی چھتیں اور بجلی کے پول بھی گر گئے، جس وجہ سے شہری سخت اذیت میں مبتلا ہیں۔ چند روز قبل آنے والے سیلاب تباہکاریاں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ پھر سے سیلاب نے کاچو کے مکینوں کو مشکل میں ڈال دیا۔ کاچو میں کھیرتر کے پہاڑی سلسلے میں موسلادھار بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیلابی ریلا ایک مرتبہ پھر کاچو میں داخل ہو گیا، جس سے درجنوں مکانات گر گئے، جبکہ سیلابی ریلے میں 2 خواتین اور ایک بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ محکمہ موسمیات نے ضلع دادو میں فلڈ وارننگ جاری کر کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گردو نواح میں موسلادھار بارش کے باعث شہر کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، جس کے باعث شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلطان سدھو۔
टोबा टेसिंग और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बारिश के बायस मौसम यकसर तब्दील हो गया और हबस का जोर टूट गया है। सड़कों और गलियों में पानी जमा है, जबकि मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने से शहर में बिजली का निजाम मुअत्तल है। दूसरी जानब हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत के बरक्स जिला इंतजामिया ने बरसाती नदी नालों की मुनासवाई नहीं की, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने का खतरा है। शहर में 10 से ज्यादा बड़े नदी नाले हैं जिनकी सालों से सफाई नहीं हो सकी। गुज़िश्ता साल मोहल्ला ईदगाह में बारिश के बायस तअद्दुद मकानात की दीवारें गिर गई। बिल्कुल टोबा टेक में सुबह से वक्फा से बारिश का सिलसिला तो जारी है, लेकिन यहाँ पर जो पानी खड़ा होगा गली कुचों में कुछ इलाके नशेबी होने की वजह से ज़ेरे आब भी आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ज़िले इंतजामिया की जानिब से जो बरसाती नदी नाले थे या जिनकी सफाई करना चाहिए थी वो नहीं की गई। इस वजह से यहाँ पर जगह जगह पानी खड़ा, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालिया बारिशों से जहां शहरी परेशान हैं, वहीं किन्नू और कपास की फसल को खातिर फायदा भी हो रहा है और किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। टंडो जाम में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी, आटा, चावल समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। देखते हैं जुनेद अली की ये रिपोर्ट। सिंध के दूसरे शहरों की तरह टंडो जाम में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चीनी, आटा, चावल और दीगर एशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा 10 किलो का थैला 650 रुपए, चीनी 110 रुपए किलो, चावल 180 रुपए फी किलो बिकने लगे। शहरियों ने बात करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के महीने में भी एशिया खुर्दोनोश की कीमतें कम न हो सकी, जबकि मुहर्रमुल हराम में नजर नियाज हजरत मौला हुसैन का नियाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आटा, चीनी और चावल दीगर एशिया फरोख्त दुकानदारों ने मनमाना इजाफा कर दिया है। आटा है, चीनी है, ये रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है और है रोजाना इस्तेमाल की, हर हाल में लेनी है। हम तो बस यही मुतालबा कर सकेंगे कि भाई इनके ऊपर कुछ इनमारे पे रहम किया जाए और कुछ सस्ताई की जाए, ताकि गरीब आदमी को अपनी जिंदगी गुजारने में सहूलत हो सके। टंडो जाम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटियां मंजर आम से गायब है। शहरियों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि मुहर्रमुल हराम के महीने में भी मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्ती एशिया की जाए, जिससे नजर नियाज हुसैन का एहतमाम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शरीफ मिट्टू के साथ जुनेद भट्टी, सच न्यूज, टंडो जाम। मुल्क भर की तरह भावलपुर के शहर चनीगोट में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे की कीमत में इजाफे के बायस गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सदीक। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चनीगोट शहर में भी महंगाई अपने अरूज पर। एशियाई खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ आटे की कीमत में भी इजाफा होने लगा। आटे की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर होने लगा। दुकानदार अपनी पुरानी रिवायात को बरकरार रखते हुए कीमतों में अपनी मनमानी करने लगे। हुकूमत की तैयार करदा कीमतों के लिस्ट का नामो निशान नहीं। दिहाड़ीदार तबके का कहना है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरियात से महरूम हो रहे हैं, लेकिन दुकानदारों ने आटे की कीमत में बेबहा इजाफा करके हमें और हमारे बच्चों से रोटी का निवाला भी छीन लिया है। दिहाड़ीदार तबके का दुकानदारों से शिकायत है कि हम रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई का सामना नहीं कर सकते। हमारे बच्चे स्कूल जाना तो दूर की बात है, लेकिन 2 वक्त की रोटी से भी महरूम किया जा रहा है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर महंगाई को कम किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चनीगोट। घोटकी के इलाके ढेरकी में यूटिलिटी स्टोर पर चीनी नायाब हो गई, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। देखते हैं अब्दुल गफूर की इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर की रेट लिस्ट पर चीनी का रेट 68 रुपए तो लिख दिया गया है, मगर यूटिलिटी स्टोर पर चीनी मौजूद नहीं है। ढेरकी की आवाम आम दुकानों पर चीनी 110 रुपए महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। हम यूटिलिटी पे चीनी लेने गए थे, चीनी वहाँ पर 68 रुपए रेट था, पर चीनी मौजूद ही नहीं होती। रोज चक्कर लगाते हैं, यूटिलिटी की मिलती नहीं है। यहाँ पर चीनी 110 रुपए है। महंगाई इतनी कर दी है, पीछे से गवर्नमेंट तब्दीली का नारा लगाती है। तब्दीली ये है कि महंगाई बहुत हो गया है, आटा महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है। 500 रुपये दिहाड़ी है गरीब मजदूर बंदों की, वो क्या क्या ले 500 रुपये में, और तनख्वाहदार तबका क्या ले अपनी तनख्वाहों में। फ्रूट हैं, दवाओं के खर्च हैं, महीने से पहले ही, आने से पहले ही तनख्वाह खत्म हो जाती है। रुपये गए थे, वहाँ चीनी नहीं थी, 68 रुपये किलो थी, मगर इधर आए तो ये 110 रुपये किलो है। क्या करें हम गरीब, आटा 60 रुपए किलो हो गया। लोग आम दुकानों से महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत को चाहिए कि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि आवाम सस्ते दामों चीनी खरीद सके। कैमरा टीम के साथ अब्दुल गफूर सुमरो, सच न्यूज, ढेर। टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया जहां आज तक बस स्टैंड की सहूलत से महरूम है,
बस स्टैंड न होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया आज तक जनरल बस स्टैंड की सहूलत से महरूम। बस स्टैंड न होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना, जबकि म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामिया की जानिब से शहर से जगह की अदम दस्तयाबी पर शहर से 3 किलोमीटर दूर बस स्टैंड बना दिया गया, जो कि फाल न हो सका। वीराने में बनाया गया ये बस स्टैंड जिस पर शहरी और मुसाफिर मुतमईन दिखाई नहीं देते और न ही कोई बस वहाँ आकर स्टॉप करती है। मुसाफिरों और शहरियों का कहना है कि कमालिया में लारी अड्डा नहीं है, शहर से 3-4 किलोमीटर दूर है। सवारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जाने आने में से, तो मेहरबानी करके गवर्नमेंट से अपील है कि लारी अड्डा इधर जो है ना शहर के अंदर बनाया जाए। इधर कोई भी लारी अड्डा नहीं है, कभी किसी स्टॉप में उतरती है सवारी, कभी किसी स्टॉप में उतरती है, कभी लारी अड्डा शहर के बाहर चला जाता है, कभी अंदर ले आते हैं। बराए मेहरबानी हम अपील करते हैं लारी अड्डा को शहर के अंदर लेकर आया जाए। शहर के सेंटर में बस स्टैंड तो समझ में आता है, लेकिन शहर से दूर वीराने में 3 किलोमीटर दूर चिच्चाउतनी रोड पर बस स्टैंड बनाना मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बायस है। रिक्शे वाले शहर छोड़ने पर 100 रुपए किराए का मुतालबा कर देते हैं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फिलफौर स्टैंड को अंदरून शहर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है, ताकि रात के वक्त सवारियों को किसी भी वारदात से बचाया जा सके। टोबा टैक्सिंग की तहसील कमालिया आज तक जनरल बस स्टैंड की सहूलत से महरूम है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से फिलफौर जो है अंदरून सिटी जनरल बस स्टैंड कायम करने का मुतालबा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमालिया। कश्मोर की तहसील कंदकोट के रेलवे स्टेशन में सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला बरोही। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस कई माह से बंद ट्रेन सर्विस तो बहाल हो गई, मगर कंदकोट रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान है। न पीने को पानी है, न बैठने की जगह, जिसकी वजह से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो पहले 6 माह से बंद था, अब दोबारा बहाल हो चुका है। रेलों का आना जाना जो बहाल हो चुका है। और हम बात करते हैं यहाँ पर अवाम को, मुसाफिरों को बिल्कुल सहूलत नहीं है। यहाँ पर बैठने के लिए ना जगह है, ना पीने के लिए मीठा पानी है। हम यहाँ पर अवाम को बहुत तकलीफ होती है। हम वफाक हुकूमत से अपील करते हैं, खुदारा कंदकोट स्टेशन को यहाँ जो सहूलतें हैं वो मुयसर की जाएं और मुसाफिरों की जो परेशानी है वो खत्म की। मुसाफिरों ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वज़ीर रेलवे शेख रशीद से मुतालबा किया कि रेलवे स्टेशन पर तमाम तर जरूरी सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि मुसाफिर बासानी सफर कर सकें। बिजली के बिलों में लगाए गए टैक्सेस से बाग के शहरियों और ताजरों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली सैयद। बिजली की लोड शेडिंग के साथ साथ बोगस बिलों की सूरत में महकमा बरकियात ने आवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। शहरियों का कहना है कि सार्फिन जितनी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, GST, फ्यूल एडजस्टमेंट और टैक्सेस लगाकर बिल को दुगना कर दिया जाता है। जितनी यूनिट सार्फ यूज करता है उससे ज्यादा उसको GST, फ्यूल सरचार्ज, बैंक चार्जेस ये लगा के उससे 2 गुना ज्यादा बिल उससे बढ़ाया जाता है। ये आम सार्फ के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म है। मेरा जाती जो बिल है वो पिछले महीने 150 यूनिट का जो बिल था वो 1200 समथिंग था, और इसी महीने उसको बढ़ाकर वही 150 यूनिट जो बिल आया है मेरा वो 1600 समथिंग पे चला गया है। लॉकडाउन के दौरान कोरोना ने पहले ही मईशत की कमर तोड़ दी, ऊपर से बोगस बिल्लात ने आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया। देखिए ये गुंडागर्दी इसको समझने क्या है, वापटा वाले और RIC वाले और ये बरकियात वाले जो आज़ाद कश्मीर के लोगों से ये गुंडागर्दी के तौर पर ये सारे टैक्सेस लेते हैं। ये सरासर ज्यादती है गरीब आवाम के साथ, जिसका एजे के गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। एक तो लॉकडाउन में लोग मुतासर हुए, तो आने वाले आप देखें आप ये मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये जो बिलात पे टैक्स लग गए हैं, तो ये सरासर ज्यादती है, गवर्नमेंट को इस पर नोटिस लेना चाहिए। आवाम का हुकूमत वक्त से बिजली के बिलों पर लगाए गए टैक्सेस के खात्मे का फौरी मुतालबा। एक तरफ कोरोना और लॉकडाउन की सख्तियां, तो दूसरी तरफ महकमा बरकियात की तरफ से जारी करदा बोगस बिल्लात ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। शहरियों ने हुक्मरान जमात वापडा और बरकियात से टैक्सीज के नफाज के खात्मे का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मुजीब मुगल के साथ आमिर अली सैयद, सच टीवी, बाग, आजाद कश्मीर। पिपला का नवाही इलाका हरनोली कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद आसिफ रिपोर्ट करेंगे। पिपला शहर की तरह नवाही इलाका जात में भी सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाने लगे। नवाही इलाका हरनोली के मोहल्ला जात में जगह जगह गंदगी के ढेर अवाम के लिए तकालीफ का बायस हैं। पूरी सड़क पर जो है वो गंदगी फैली हुई है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया से अपील की गई है लेकिन हमारी कोई सुनीद नहीं होती। लिहाजा इंतज़ामिया से मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि इस गंदगी को साफ़ किया जाए ताकि मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचा जा सके। शहरियों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी हरनोली और चीफ ऑफिसर टाउन कमेटी हरनोली अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल, महज दफातर तक ही महदूद हैं। हमारे बाला हुकाम को ये एहसास भी नहीं है कि अवाम का चलना फिरना और सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। तो इनके बारे भी वो सोए हुए हैं, जो सोए हुए हैं वो जागें और हरनोली शहर में आके विजिट करें और चक्कर लगाएं और देखें कि अवाम इस वक्त किस हाल में। हरनोली के मोहल्ला जात, हस्पताल रोड, मोहल्ला बिलाल मस्जिद समेत मोहल्ला मुस्लिम शेख में सफाई सुथराई की बाकायदा टीमें तश्कील देकर मोहल्ला जात में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल गफार भचर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, हरनोली, तहसील पिपला, जिला मियांवाली। लिया के इलाके चौक आजम में सीवरेज का नाकिस निजाम है। गलियों में सीवरेज का पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं जहूर दुरानी। नवाई इलाका चौक आजम में निकासी आपका निजाम बेहतर न होने की वजह से गलियां मल्ले जौहर का मंजर पेश करने लगे। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होना शुरू हो गया। जहां शहरियों का गलियों से गुजरना मुश्किल है, वहीं घरों के बाहर खड़े पानी ने लोगों को घरों में महसूर कर रखा है। शहरियों का कहना था, देखिए वार्ड नंबर 7 मल्लास्कराबाद में जो है सीवरेज का गंदा पानी जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मक्की जामे मस्जिद के चारों रास्ते जो है सीवरेज के गंदे पानी की वजह से बंद हो चुके हैं, जिससे नमाजियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। उसके अलावा सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का भी खतरा है। ये बिजली के खंभे हैं जो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, जिससे जो है हमारे मोहल्ले के काफ़ी बच्चों को जो है करंट भी लग चुका है। हमारी जो है डीसी साहब से, अमला म्यूनसिपल कमेटी से और मकामी क़यादत से गुजारिश है कि खुदारा फिलफौर इस मसले का हल कराया जाए। सीवरेज के पानी में डूबे बिजली के पोल्स किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। शेखुपुरा शहर और गिरदोनवा के इलाकों में कायम गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और डबा स्टेशनों के बाइस आग लगने के बाद मुतअद्दिद वाक़यात रहनुमा हो चुके हैं। शेखुपुरा भर में मिनी पेट्रोल पंप्स और डबा स्टेशन इंसानी जानों के लिए शदीद खतरे का बाइस बन चुके हैं। शहरियों का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने डबा स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सियासी दौरे में सेल्फियां लेने का काम शुरू कर दिया। शहर भर में 50 से ज्यादा मिनी पेट्रोल पंप्स और डबा स्टेशन कायम हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से डबा स्टेशनों और मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने के बायस उनकी तादाद में आए रोज खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। मिनी पेट्रोल पंप्स और डबा स्टेशनों पर हिफाजती इकदाम न होने के बायस आग लगने के मुतअद्दिद वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कलदन तंजीम के 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद और दस्ती बम बरामद कर लिए। जिला चारसदा में शब कदर पुलिस की कार्रवाई में कलदन तंजीम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों की निशानदेही पर बारूदी मवाद और 3 दस्ती बम बरामद हुए। मुलजिमान ने दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। एक दहशतगर्द अफगानिस्तान में बड़ी तंजीम के कमांडर से रवाबित थे। गिरफ्तार दहशतगर्द ने चारसदा में थाना ख्वाजा में हमले के लिए बमबार तैयार किया था। थाना सरो और शबकद्र समेत पुलिस मोबाइल्स निशाने बनाने की मंसूबाबंदी की थी। टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में मुलव्विस रहे तीनों दहशतगर्दों को CTDA के हवाले कर दिया गया। राजनपुर में रिश्ते के तनाजे पर मुखालिफिन की घर पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक और फायरिंग से 4 अफराद जख्मी भी हुए। राजनपुर की ठेकरी कॉलोनी पर रिश्ते के तनाजे पर मुखालिफिन ने एक बार फिर फायरिंग कर दी, जिससे 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। फायरिंग से एक खातून समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि मुलजमान मौके से फरार हो गए। लाशें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक है। देपालपुर में खातून वकील को तशद्दुद और अगवा केस में 164 के बयान कलमबंद करवाने के लिए इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। देपालपुर में खवातीन वकील के तशद्दुद और अगवा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालती ज़राए का कहना है कि खातून वकील ने 3 अफराद को नामजद कर दिया। साबिक शोहर समेत 3 अफराद को वाक़े का जिम्मेदार करार दिया गया है। इन अफराद में अकमल वोट्टू, साबिक शोहर खातून शाहनवाज और वट्टू के नाम शामिल हैं।
रोजमर्रा की अशिया का जंजीर से बंधा होना बाहैसियत कौम हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। देखते हैं कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाल्टी की ये रिपोर्ट। चंद सिक्कों की मालियत की डोरी या जंजीर से बंधी कोई छोटी या बड़ी चीज हजरत इंसान से कतन कीमती ना है, जिसकी एक जिंदा मिसाल रज़ाए इलाही के लिए लगाई जाने वाली ठंडे पानी की सबील या कूलर के साथ महज चंद रुपयों का गिलास जंजीर या रस्सी से बंधा होना हमारी अखलाकी गिरावट का मुंह बोलता सबूत है। मुसलमानों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो पानी जैसी सबील को संगल लगाएं या गिलास को संगल लगा के पाबंद करें। इसी तरह का मंजर बुक शॉप पर गत्ते से बंधी पेंसिल और पान शॉप पर रखे चंद रुपयों के लाइटर का है। बहुत सारी बेकीमत चीजें जो रिफाए आमा के तौर पर रखी होती हैं, जिसमें एक मामूली सी पेंसिल का डोरी से बंधा होना और इस तरह की दीगर कई छोटी छोटी चीजों को बांध कर रखना बहैसियत मुसलमान हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। और तो और मस्जिद के नाम पर चंदा वसूल करने के लिए रखा गल्ला, जिस पर जली हरूफ से आखिरत का खजाना और अल्लाह देख रहा है, ये सब एहतियाती तदाबीर के अलावा इंसानी हरकत को देखने के लिए आज के जदीद दौर में छोटी से छोटी दुकान से लेकर बड़े से बड़े प्लाजों में सिक्योरिटी कैमरों के जरिए हिफाजत करके रिकॉर्डिंग के साथ साथ ये भी लिखा होता है, खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। रस्सियां, जंजीर, ताले या जदीद दौर के सिक्योरिटी कैमरे सिर्फ अशरफुल मखलूकात के लिए हैं, ये हम सबको सोचना होगा। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मुजफ्फरगढ़ की तहसील सुनावा में दावत इस्लामी के जेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने बड़ी तादाद में खून अतिया किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। सिनावा में अड्डा वनार पर MP नियाज खान गशकोरी के डेरे पर ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। थैलीसीमिया और इमरजेंसी के मरीजों के लिए डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप में MP नियाज खान गशकोरी ने भी अपना ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन का इनेकाद दावत इस्लामी के जेर तमाम किया गया था। कोशिश किया, हमारे पूरे नौजवान यहाँ वर्कर सब दोस्त आए हुए हैं और हमारी कोशिश होगी कि शाम 6 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर सकें। इंशाल्लाह 100+ बोतल इंशाल्लाह हो जाएगी। अभी तक भी दोस्त अभी ब्लड दे रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि कुर्बानी के अयाम होते हैं मुहर्रम के हवाले से। इस अयाम में हमारा एक एक कतरा हमारी आखिरत को बेहतर कर सकता है। मैं सब हर फिक्के की जमात को दावा देना चाहता हूँ कि आएँ इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अमीर दावत इस्लामी का कहना था कि MP नियाज खान की ताउन से कैंप लगाया गया है। तमाम दोस्त और वर्कर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज एक मरतबा फिर दावत इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम अमीर अलसुन्नत के फरमान पर थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। आज ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप नियाज गशकोरी साहब सनामा में ये लगाया गया है। रीजनल ब्लड इंचार्ज का कहना था कि ये ब्लड थैलीसीमिया के और इमरजेंसी के मरीजों के लिए इस्तेमाल होगा। निश्तर में ब्लड की फ्री सर्विसेज दे रहा है, तमाम एक्सपेंस गवर्नमेंट खुद बियर कर रही है और ब्लड के लिए हमें लोगों के पास जाना पड़ता है और दरख्वास्त करनी पड़ती है, तो लिहाजा इस कार्य खैर में हर बंदे को चाहिए कि अपना हिस्सा मिलाए। 100 से ज्यादा अफराद से ब्लड लिया जाएगा और उनसे हासिल होने वाला ब्लड इमरजेंसी और थैलीसीमिया के मरीजों के काम आएगा। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज, सिनामा। दुनिया के चेहरों पर रौनकें बिखेरने वाले स्टेज अदाकार अब्बास मस्ताना बीमारी के बायस फाका कशी पर मजबूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत हुसैन। शुजाबाद के इलाके बस्ती सिकंदराबाद से ताल्लुक रखने वाला दुनिया के चेहरों पर रौनकें बखेरने वाला स्टेज अदाकार अब्बास मस्ताना की बीमारी के बायस नौबत फाको कशी तक जा पहुंची। अब्बास मस्ताना मुल्तान, कराची, लाहौर के कई मशहूर स्टेज ड्रामों में अपने फन का मुजाहरा करने वाला मकामी अदाकार मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने के बायस इंतहाई गुर्बत और परेशानी की हालत में जिंदगी बसर करने पर मजबूर। गुज़श्ता 2.5 साल से बीमार और बेरोजगार होने की वजह से घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए। 30 साल से शोबिस के मुख्तलिफ शोबों में काम करता रहा हूँ और अब बीमारी के बाइस शुगर की वजह से मेरी दाएं टांग से महरूम हो चुका हूँ। लिहाजा मेरी पाकिस्तान के मुखिर हजरात और बिलखसूस मलक रियाज साहब बहरिया टाउन वाले, उनसे मेरी दरख्वास्त है और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ मेरी किसी भी तरीके से मेरी मदद। मकामी अदाकार अब्बास मस्ताना ने हुकूमत वक्त और मुखैर अदालत से मदद की अपील की है। कैमरामैन मुबशिरुल हक, कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज, शुजाबाद। पाकपतन में उर्स बाबा फरीद की तकरीब जारी है। इंतजामिया ने कोरोना के खदशात के बायस उर्स की तकरीबात को महदूद कर दिया। पाकपतन में उर्स बाबा फरीद बहिश्ती दरवाजे की तकरीबात को भी 5 रोज से 2 रोज तक महदूद किया गया है।
आखिरी रोज अजान फजर के वक्त बहिश्ती दरवाजे को 1 साल के लिए बंद किया जाता है। उर्स बाबा फरीद के मौके पर बहिश्ती दरवाजा खोलने के मामले पर जिली इंतजामिया और दीवान फैमिली आमने सामने है। वजीर आला के हाथों बहिश्ती दरवाजे की फकल कुशाई और सजादा नशीन के साहबजादे ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। पतोकी में दौरे जदीद में भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल जारी है। ये बर्तन किन किन मराहिल से गुजर कर तैयार होते हैं, देखते हैं अली शेर भट्टी की ये रिपोर्ट। मिट्टी के बर्तन की तैयारी एक मुश्किल मरहला है। ज़माना कदीम में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन जदीद दौर के साथ ही मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत कम होकर रह गया है। जबकि आज के जदीद दौर में कुम्हार मिट्टी के बर्तन तैयार करके अपना रोजगार कमाते हैं। मिट्टी के बर्तनों की तैयारी के लिए चिकनी मिट्टी का इंतखाब किया जाता है और फिर पाँव की मदद से मिट्टी को पानी में भिगोकर यकजा किया जाता है। बाद अज़ा मिट्टी के छोटे छोटे पेड़ों को लकड़ी के चाक पर रखकर पाँव की मदद से घुमाया जाता है और साथ ही हाथों के हुनर से मिट्टी के ऐसे ऐसे शाहकार तख्लीक किए जाते हैं कि जिसे देखकर साइंस भी हैरान हो जाए। दूसरे मरहले में मिट्टी से तैयार करदा कच्चे बर्तनों को धूप में रखकर सुखाया जाता है। दोबारा फिर बर्तनों को पीली मिट्टी वाले पानी में भिगोकर सुखाया जाता है, जबकि आखिर में तेज आग में पकाकर बर्तन तैयार हो जाते हैं। खतरनाक जरासीम और बैक्टीरिया से बचने के लिए तिब्बी माहिरीन आज भी मरीजों को मिट्टी से बने हुए बर्तन इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अली शेर भट्टी, सच न्यूज, पतोकी। सिंध की खास पैदावार छोटी सी नजर आने वाली मगर निहायत ही लजीज पीली रंग की खजूर एक है, मगर इसकी मुख्तलिफ इकसाम से जानी जाती है। आसिफ रजा की रिपोर्ट देखिए। खजूर एक किस्म का फल है जो जून जुलाई की गर्मी में पककर तैयार हो जाती है। वैसे तो खजूर मुख्तलिफ खित्तों की पैदावार है और खजूर की एक नहीं बल्कि कई इकसाम हैं। आज हम एक ख़ास किस्म की खजूर जो पीली रंगत की खुशनुमा होने के साथ साथ जायकेदार और रसदार होती है, जो ख़ास सिंध की पैदावार है और सिंध के मुख्तलिफ शहर जिनमें सखर, रोड़ी, डहरकी, घोटकी, पन्नू आकिल, मेहरापुर और नवाबशाह समेत दीगर शहरों में भी इसकी पैदावार होती है। मगर साबका वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के आबाई शहर खैरपुर को पीली रंगत वाली खजूर की वजह से खासी शोहरत हासिल है। पीली रंगत वाली खजूर खैरपुर की मशहूर सौगात है। सिंध की इस सौगात को शायकीन बड़े शौक से खाते हैं। सिंध की सौगात है और यह सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पाई जाती है, जैसा कि नवाबशाह, खैरपुर, गम्बड, मेहरापुर, पन्नू आकिल और घोटकी तक पाई जाती है। ये खजूर से हलवा, बर्फी, पकोड़े और दीगर लजीज डिशें भी तैयार की जाती हैं, जिसमें हलवा और बर्फी काबिल जिक्र हैं, जिसे बतौर तोहफा अपने अजीज़ व क़रीब में लेकर भी जाते हैं। पीली रंगत की खजूर कत्तल, डोका, डंग, असील और सिंधी खजूर के नाम से जानी जाती है। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाबशाह। खानेवाल नवाही इलाके में थप्पड़ कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सकाफती खेल थप्पड़ कबड्डी में पहलवानों के दाव पेच देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर अब्बास। खानेवाल नवाही इलाके 91-10 में सईद जंडीर की जानिब से दिलचस्प थप्पड़ कबड्डी मैच का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जावेद जट्टू और अच्छू बकरा की टीम के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश करते हुए अपनी सलाहियत के खूब जोहर दिखाकर शहरियों से खूब दाद वसूल की। शहरियों की बड़ी तादाद थप्पड़ कबड्डी मैच को देखकर डोल की थाप पर बंगड़े डालते रहे। अच्छू बकरे की टीम ने 4 पॉइंट से जीत अपने नाम कर ली। एहतमाम पर खिलाड़ियों को अनामात भी दिए गए। शहरियों का कहना था सेहतमंद जिंदगी के लिए सकाफती खेलों का इनकाद होना चाहिए। कैमरा टीम के साथ ताहिर अब्बास, सच न्यूज, खानेवाल। मजीद खबरें शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। करबला के नन्हे शहीद शहजादा अली असगर का, जिनकी शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में हुई। हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम हुर्मुला लईन के तीर से बाप के हाथों में ज़िबा हुए। आज जिक्र है करबला के नन्हे शहीद शहजादा अली असगर का, जिनकी शहादत इमाम हुसैन के हाथों में हुई। हजरत अली असगर लईन हुर्मुला के तीर से बाप के हाथों में ज़िबा हुए। जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं,
असगर में तेरी माँ। जी हाँ, हजरत अली असगर बाप की गोद में तीर से ज़िबा हुए। इंसानी तारीख में इससे पहले कमसिन शहादत की ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। जनाब अली असगर दश्त बेमुरव्वत के सबसे कमसिन शहीद हैं। शहादत के वक्त शहजादे की उम्र सिर्फ 6 माह है। हक व बातिल के मार्के करबला में वक्त आखिर साहिबुल अम्र की आवाज हल मिन नासिर यंसुरना बुलंद हुई। उस वक्त तक बनी हाशिम के जवान और असहाब इमाम सब शहीद हो चुके। मर्दों में सिवाय बीमार करबला, सैयद सज्जाद और हजरत अली असगर के कोई न बचा। नुसरत इमाम में शहजादे ने खुद को गहवारे से गिरा लिया। ये वक्त था जब इमाम हुसैन तमाम साथियों के लाशें उठा चुके। जवान बेटे हम शक्ल पैगंबर अली अकबर के जिगर से भी बर्छी निकाल चुके। इमाम वक्त की निगाह माँ की गोद में शशमाहे अली असगर की तरफ जाती है। बच्चा 3 दिन की भूख और प्यास से निढाल है। इमाम अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं और शहजादे अली असगर फौज अशकिया के सामने दश्त नैनवा में लाते हैं। मुझे अपने सीने से लगा ले, माँ मुझे अपनी गोदी में छुपा ले। फौज अशकिया समझी शायद अब कोई नहीं बचा। इमाम हाथों पर कुरान उठा लाए हैं, मगर ये क्या, ये तो मानिंदे सूरह कौसर इमाम वक्त की आवाज पर लब्बैक कहने वाले नन्हे अली असगर हैं। इमाम के सवाल पर फौज अशकिया में तलातुम बपा हो जाता है। मुर्दा दिल भी चीख उठते हैं। सूरत हाल खराब देखकर फौज यजीद के सबसे ताकतवर और निशानेबाज हुरमला को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हाय रे मुसलमानों, 6 माह के बच्चे के मुकाबिल हुरमला को भेजा। और हुरमला वो तीर इस्तेमाल करता है जो बड़े जानवरों को शिकार करने के लिए चलाया जाता है। जाने पिदर इमाम के हाथों पर मुस्कुराते हुए जान दे देता है। इस मौके पर इंसानी तारीख ने अजब मंजर देखा। हमारा सलाम हो 6 माह के उस जरी पर जिसकी मुस्कुराहट से मौत के माथे पर भी पसीना आ गया। दीन खुदा में कमसिन शहीद का खून जमीन और आसमां कबूल करने को तैयार नहीं। इसी कयामत के वक्त को शायर ने कुछ इस तरह बयान किया है। इनकार आसमां को है, राजी जमी नहीं, असगर तेरे लहू का ठिकाना कहीं नहीं। और अज़ादारी सैयद शोहदा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश होते हैं। इमाम आली मकाम और नन्हे शहीद शहजादा अली असगर की शहादत पर बच्चों के हाथ खुद ब खुद उठ जाते हैं। आ जाओ चांद मेरे, तेरी प्यास मैं बुझाऊं, असगर में तेरी माँ। कायनात के गोशे कनार में इमाम मजलूम का मातम जारी है और या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये है करबला वालों का गम जो बच्चों को भी अपने शहर में जकड़ लेता है। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम का गम किसी मखसूस जगह का मोहताज नहीं। यही वजह है कि कहीं भी मसाइबे आले मोहम्मद पर बेसाख्ता या हुसैन की सदाएं और मातम के लिए हाथ बुलंद हो जाते हैं। कुछ तो है जो कि समझ बूझ से आरी बच्चे भी हुसैन हुसैन कहने पर मजबूर हैं। मुल्क भर में इमाम आली मकाम की कुर्बानी, सब्र और इस्तेकामत की याद में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। मजालिस के दौरान कोरोना SOPs से बचाव के लिए SOPs का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। अवल नगर की मरकजी इमाम बारगाह में मजालिस अज़ा का एहतमाम किया गया, जिससे ज़ाकिर अलबैत बाबा फ़कीर हुसैन पंजतनी और अलामा नाजिम इतरती ने फ़ज़ाइल व मसाइब सैयद शुहदा व रफ़क़ा बयान किए। मजलिस में कोरोना वायरस के पेश नज़र SOPs का भी ख्याल रखा गया। खानेवाल में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह इमामिया हुसैनिया से बरामद हुआ। मरकजी जुलूस में अज़ादारान ने बड़ी तादाद से शिरकत की। जुलूस के रास्तों में नजर नियाज का भी एहतमाम किया गया। विहाड़ी में 6 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस आलम चौक से बरामद हुआ और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हैदरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम को ताज़ा करने के लिए मुल्क भर की तरह जिला कोहाट में भी 112 इमाम बारगाहों में मजलिस अज़ा बर्पा हो रही है, जिसमें उलमाए कराम फलसफा करबला बयान करते हुए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानसार साथियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं।
लोधरा की तहसील दुनियापुर में भी अशरा मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में इमाम बारगाह हुसैनिया कसरे अबू तालिब, इमाम बारगाह अब्दुल फजल अब्बास, इमाम बारगाह कसरे अब्बास और इमाम बारगाह कमर शाह समेत तहसील भर के दीगर इमाम बारगाहों में मजालिस अज़ा का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम और ज़ाकिरीन ने मजालिस अज़ा के शुरका से खिताब करते हुए फ़ज़ाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद पर रोशनी डाली और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व दीगर शहदाए करबला के मसाइब बयान किए। मजालिस अज़ा में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। सरदारगढ़ में 6 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इख्तिताम पजीर होने के बाद मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें अज़ादारों ने मातमदारी की। गोजरा में भी मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस व मजालिस का सिलसिला जारी है। मुल्क भर में करबला के प्यासों की याद में सबीलों और नजर नियाज का एहतमाम भी किया जा रहा है। खैरपुर में 6 मुहर्रम उल हराम का मरकजी और कदीमी मातमी जुलूस इमाम बारगाह लुकमान से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ज़री पाक वडा अलम पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मीठे पानी की सबील का भी एहतमाम किया गया। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह लुकमान से शुरू हुआ, जिसमें इलाके भर से मातमी संगतें नोआ ख्वानी और पुरसादारी करती रहीं। अलम अब्बास का मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह ज़री पाक वडा अलम पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए थे। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में अशरा मुहर्रम की मजालिस का सिलसिला जारी है। 6 मुहर्रम उल हराम शबीए अलम व जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह महाजरीन से बरामद हुआ। रिपोर्ट करें राजा साकिब। इमाम बारगाह गुलिस्तान ज़हरा चकवाल में अशूर मुहर्रम की मजालिस का सिलसिला जारी है। 6 मुहर्रम उल हराम की मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए ज़ाकिर अमीरुल हसन काज़मी, ज़ाकिर वसीम वाज़ बलोच ने कहा कि शुहदाए करबला की याद पूरी दुनिया मना रहे हैं और नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में दी जाने वाली अजीम कुर्बानी को पुरसा पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दश्त करबला में अपने जानिसारों के साथ वो अजीम कुर्बानी पेश की, जिससे इस्लाम ताअबद जिंदा व जावेद हो गया। मजलिस का एहतमाम मुतवल्ली चौधरी अज़हर अब्बास ने किया। मजलिस के ख़त्म पर ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच ने शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत पढ़ी, जिस पर अज़ादारों ने पुरसा पेश किया। जबकि 6 मुहर्रम उल हराम शबीए अलम व जुलजना का हसास जुलूस इमाम बारगाह मुहाजिरीन सदात से बरामद हुआ, जबकि सैयद आबिद हुसैन मरहूम की रिहाईगाह से शबीए जुलजना बरामद हुई। जुलूस में नौखानों ने नौखानी करके और अज़ादारों ने अज़ादारी मातम करके शुहदाए करबला को पुरसा पेश किया। जुलूस मुकर्रर रास्तों पिंडी रोड, अस्पताल रोड, पुरानी सब्जी मंडी से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह सरफाक पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि जुलूस के रास्तों पर सबील शहजादे अस्कर भी लगाई गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, सच न्यूज़ चकवाल। मुहर्रम उल हराम में जहां जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया जाता है, वहीं हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी जुलजना की शबी को भी खास अहमियत हासिल है। वाक़या करबला जुलजना में क्या किरदार था, इस पर रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे नवीद इकबाल। जुलजना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी थी, जिसने बचपन से हजरत हुसैन के साथ परवरिश पाई और वाक़या करबला में ये सवारी भी मौजूद थी। मुहर्रम उल हराम के सिलसिला में निकाले जाने वाले जुलूसों में शबीह जुलजना को बहुत अहमियत हासिल है। ये जो सवारी पीछे खड़ी है, ये शबीह है मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की। इसको इमाम हुसैन की सवारी के साथ निस्बत दी जाती है और यहाँ पे लोग आकर अकीदत के साथ इसको सलाम करते हैं और इसको 9 मुहर्रम शब शूर को और 10 मुहर्रम को जहाँ डस्का शहर में इसकी बरामदगी होती है। शबीह जुलजना अरबी नस्ल की इस सवारी पर पूरा साल अकीदत और तवज्जो से ख्याल रखा जाता है। इमाम हुसैन की सवारी की निस्बत से इसकी पूरा साल खिदमत की जाती है। ये सवारी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सवारी की निस्बत है। इसका मैं ही खिदमतगार हूँ, इसका सारा साल मैं ही खिदमत करता हूँ। इसकी सेवा, पानी, जवी, खरकना, बुरश जो भी लगाते हैं इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह, ये जुलजना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत है। हर साल मुहर्रम उल हराम में जुलजना के जुलूस बरामद किए जाते हैं और शबीह जुलजना से अज़ादार अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज़, डस्का। पीर महल में 6 मुहर्रम का जुलूस तनवीर हुसैन की रिहाइश गाह से बरामद होकर मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबी तालिब में इख्तिताम पजीर हुआ। पीर महल में 6 मुहर्रम का जुलूस तनवीर हुसैन की रिहाइश गाह से बरामद हुआ, जिसमें पुलिस की तरफ से जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। जुलूस के रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल सुल्तान जफर, SHO माहर मुमताज और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी राना अनवर ने जुलूस की निगरानी की। मजलिस अज़ा के बाद शबीए अलम हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बरामद हुआ।
जलूस मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह कसर अबी तालिब में इख्तिताम पजीर हो गया। मुहर्रम उल हराम के अय्याम में मातमी और जुलजना के जुलूसों के लिए जहां कई दीगर लवाजमात की तैयारी पर खसूसी तवज्जो दी जाती है, वहीं पर अलम का भी जुलूसों में मुनफरिद मकाम हासिल है। पेशावर से अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। लश्कर हुसैनी के सिपा सलार हजरत अब्बास, जिनको अलमदाद भी कहा जाता है, को पुरसाद देने के लिए खसूसी तौर पर यकम तक 7 मुहर्रम उल हराम तक शबीए अलम को तैयार किया जाता है। पेशावर का रिहायशी अली इलियास हुसैन करबलाई पिछले कई अरसों से जुलूसों के लिए बगैर किसी मुआवजे के अलम बना रहा है। इसमें कम से कम 4 किस्म के अलम बनते हैं, जिसमें एक अलम के जिस तरह की आप वो देख रहे हैं, अलम के ऊपर यहाँ इसके ऊपर सुराई बना हुआ निशान, किसी के ऊपर सुराई की जगह पंजा होता है, किसी का खाली नेजा बना होता है, किसी की कड़ी बनी होती है, और एक खास है जो कि करबला मोहल्ला से चला आ रहा है, उसके ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताजिया जरी मुबारक की शक्ल बनी होती है। हजरत अब्बास अलमदाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं। मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूसों में वफा के पैकर खिलाने वाले हजरत अब्बास की याद में शबीए अलम की तैयारी खसूसी अहमियत की हामिल होती है। इन्होंने जो है बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, और जो है करबला के मैदान में इनकी ड्यूटी जो थी वो पानी लाने के ऊपर थी, और पानी लाने के दौरान ये यजीदी फौज की जो है लश्कर का निशाना बने और वहाँ पर ये शहीद हुए, और इसी शहादत की वजह से इनको गाजी अब्बास का लक़ब दिया गया, और जो कि ताहयात ये लक़ब जारी और सारी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला ये अलम जो है उनकी याद में निकाला जाता है। पेशावर और गिरदोनवा में मुख्तलिफ नौयत के शबीए अलम तैयार किए जाते हैं, मगर ज्यादातर लोग मातमी जुलूसों में कश्मीरी अलम को तरजीह देते हैं। अज़ादारी के मातमी जुलूसों में शबीए अलम की बुलंदी हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद दिलाती है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। खबर दें, चनियोट से जहां निकाले जाने वाला उस्ताद शागिर्द ताजिया अपनी एक मुनफरिद पहचान रखता है, जिसे चनियोट के माहिर कारीगरों ने बयार की लड़की पर नक्श निगारी करके बनाया है। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में अपनी एक मनफरद पहचान रखने वाले 9 ताजिया जात में से एक ताजिया उस्ताद शागिर्द का ताजिया है, जिसे चनियोट के महर कारीगरों ने ब्यार की लकड़ी पर नक्श नगारी करके बनाया है, जिसका वजन 80 मन से 100 मन के करीब है। इस ताजिया को 40 से 50 लोग उठाते हैं। उस्ताद शागिर्द ताजिया की 4 बड़ी मनाजिल हैं, जबकि कुल मनाजिल 12 हैं, जिनका मकसद 12 इमामों से तशबीह देना है। 1861 में तैयार किया गया उस्ताद शागिर्द का ताजिया आज भी अपनी एक मनफरद पहचान रखता है। ये ताजिया 1861 में तैयार किया गया था। ये पहले शादी मलंग है, मकसद जिसे उस्ताद ने तैयार किया, उसके शर्गिद ने ये ताजिया फिर तैयार किया। वो उस्ताद का कहलाता है शादी मलंग, ये शर्गिद का कहलाता है। उस्ताद शागिर्द ताजिया की मुरम्मत करने वाले कारीगर गुलाम रसूल का कहना है, ये ताजिया पाकिस्तान बनने से पहले मौला बख्श मिर्जा ने तैयार किया था, जिस पर लाखों रुपए खर्च हुए थे, जबकि ये अब करोड़ों की मालियत का है। उस्ताद शागिर्द ताजिया की मुरम्मत पर हर साल लाखों रुपए का खर्च आता है। ताजिया में बालकोनियां, झूला, अली असगर और ऐसी नायाब चीजें बनाई गई हैं, जो करबला के गम नवासा, रसगर गोशा बतूल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का की कुर्बानियों की याद को ताजा करती हैं। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चनियोट। नवाबशाह में शहजादा अली असगर के झूले के मातमी जुलूस इमाम बारगाह कमरे बनी हाशिम, इमाम बारगाह हब अली और दीगर मकामात से बरामद हुए। शोहदाए करबला की याद में मजालिस और अज़ादारी भी की गई। नवाबशाह में शहजादा अली असगर के झूले के मातमी जुलूस बरामद हुए। दूसरी जानिब शिया उलमाए कौंसिल पाकिस्तान की जानिब से इमाम बारगाह यादगार करबला में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। मजलिस में मौलाना अली बख्श हमदानी, जवार मोहम्मद हुसैन चांडियो, आसिफ हुसैन अल हुसैनी, फिदा हुसैन चांडियो और दीगर ने खिताब किया। अंजमन शोहदाए करबला की जानिब से अज़ादारी भी की गई। दूसरी जानिब इमाम बारगाह कमरी बने हाशिम खुरासान, इमाम बारगाह अंजमन हुसैनी, इमाम बारगाह सज्जादिया, इमाम बारगाह अंजमन गुलामान अब्बास और मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस का इनेकाद भी किया गया। हैदरी इमाम बारगाह में मासूमीन और इमाम बारगाह अली रजा इमाम बारगाह में खवातीन की मजलिसें भी मुनक्किद की गईं। सिक्योरिटी के इंतजामात जाफरिया स्काउट, जाफरिया यूथ के कारकुनों ने की। मुल्क भर में जहां हजरत इमाम हुसैन समेत शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को याद किया जा रहा है और हर जगह मजालिस और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहीं इमाम बारगाहों में अलम, ताजिया और मेहंदी की ज़ियारतों की तैयारी भी दिन रात जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फरियाद मुनीर।
حضرت امام حسین علیہ السلام سمیت شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے اور ہر جگہ مجالس اور ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں اور اس سلسلہ میں امام بارگاہوں میں علم، تعزیہ اور مہندی کی زیارتوں کی تیاریاں بھی دن رات جاری ہیں۔ جلال پور بٹیا میں بھی ماہر کاریگر تعزیہ اور مہندی کی زیارتوں کے گنبد تیار کرنے میں مصروف ہیں۔ زیارتوں کی تیاری میں مصروف ان کاریگروں کو کہنا ہے کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مہندی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے تعزیہ کی شبیہات بڑی عقیدت سے تیار کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد بھی زیارتیں بناتے تھے اور اب ان کے بعد زیارتیں بنانا ہماری ذمہ داری اور فرض ہے۔ وہ باوضو ہو کر زیارتوں کی تیاری کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور نوحہ خوانے بھی کرتے ہیں۔ تعزیہ بنانے والوں کو کہنا ہے کہ ان کی تیاری میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ ان کاریگروں کو کہنا ہے یہ ہم تقریباً 2 مہینے سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ کو انشاءاللہ ہم نے یہ اب جیسے کہ یہ شہزادہ قاسم کی مہندی میں تیار کر رہا ہوں اور یہ میرے دوست، میرے یہ بھتیجے بانجے سب میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہیں اور اس پہ جو کاسٹ ہے وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تعزیہ اور مہندی کی زیارت خوبصورت سے خوبصورت ہو اور اس میں استعمال ہونے والا سجاوٹی سامان نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک سے بھی منگوایا جاتا ہے۔ ناظرین، مہندی اور تعزیہ کی تیاریوں میں مصروف یہ نوجوان دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی لازوال قربانیوں کو یاد کرتے اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کیمرہ مین غلام حسین بوٹا کے ساتھ فرحاد منیر، سچ نیوز، جلال پور بٹیا۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔